भी यहाँ उपस्थित है, and he himself is a lawyer also. So I'll read out slowly. The Arunachal Pradesh Freedom of Religion Act 1978, the Arunachal Pradesh Freedom of Religion Act 1978, which received the assent of the President of India on 25th October 1978, an act to provide for prohibition of conversion from one religious faith to any other religious faith by use of force or inducement or by fraudulent means and for methods connected therewith, be enacted by the Legislative Assembly of Arunachal Pradesh in the 29th year of the Republic of India as follows. Section 1. Section 1, subsection 1. This act may be called the Arunachal Pradesh Freedom of Religion Act 1978. Section 1, subsection 2. It extends to the whole of Union Territory of Arunachal Pradesh. Section 1, subsection 3. It shall come into force at once. So section 2 definition है, in this act, unless the context otherwise requires. Number A, government means the government of the Union Territory of Arunachal Pradesh. Number B, conversion means renouncing one religious faith and adopting another religious faith, and convert shall be construed accordingly. Number C, indigenous faith means such religions, beliefs and practices including rites, rituals, festivals, observances, performances, abstinence, customs as have been found, sanctioned, approved, performed by the indigenous communities of Arunachal Pradesh from the time these communities have been known, and includes Buddhism as prevalent among the Monpas, Membas, Sardukpans, Khambas, Khamtis and Singpos, Vaishnavism as practiced by Noctes, Akas and nature worships including worships of Dwalipolo as prevalent among other indigenous communities of Arunachal Pradesh. Section 2D, force shall include show of force or a threat of injury of any kind, including threat of divine displeasure or social excommunication. Section 2E, fraud shall include the misrepresentation or any other fraudulent contrivance. Number F, inducement shall include the offer of any gift or gratification either in cash or in kind, and shall also include the grant of any benefit either pecuniary or otherwise. Number G, prescribed means prescribed under the rules. Number H, religious faith includes any indigenous faith. So section number 3, prohibition of forcible conversion. No person shall convert or attempt to convert, either directly or otherwise, any person from one religious faith to any other religious faith by the use of force or by inducement or by any fraudulent means, nor shall any person abet any such conversion. Section 4, punishment for contravention of the provisions of section 3. Any person contravening the provisions contained in section 3 shall, without prejudice to any civil liability, be punishable with imprisonment to the extent of 2 years and fine up to 10,000 rupees. Section 5.1, subsection 1. Intimation of conversion to the Deputy Commissioner and punishment. Section 5, subsection 1 states that whoever converts
any religion, any person from one religious faith to any other religious faith, either by performing himself the ceremony necessary for such conversion as a religious priest or by taking part directly or indirectly in such ceremony, shall within such period after the ceremony as may be prescribed, send an intimation to the deputy commissioner of the district to which the person converted belongs. क्या रेजोल्यूशन मिला, क्या बात है? Yeah, we have attended a meeting according to the invitation given by the Honorable Chief Minister, Honorable Home Minister of Arunachal Pradesh. We have my team consisting of 15 members has attended the meeting, and we have opposed the APRA episode totally, and we have not resolved any resolution so far. Thank you. अभी तक कोई अपडेट, वहाँ पे कोई रेजोल्यूशन नहीं निकला आज के दिन में? No resolution we have taken. होम मिनिस्टर जो कंसर्न मिनिस्टर भी, रिलीजियस अफेयर के मिनिस्टर भी, उनकी तरफ से क्या बातें रखी गई हैं? Yeah, he has appealed us, he requested us to discuss. This is the first time we are sitting, and for second and third time he has again invited us to meet him again in the days to come. And we have also assured him that the ACF going to have a crucial emergency meeting among the organizations under which falls under ACF. So we are going to have a meeting, and we will know our meeting outcome to the Honorable Home Minister, who is also looking after the Department of Indigenous, which department is also the framing the rules of this particular Act 19, the AFRA, or Arunachal Pradesh Freedom of Religion Act AFRA, which is against the Constitution of India, against the spirit of secular, against the Christian community of Arunachal Pradesh. आप लोगों का अभी एग्जैक्टली फाइनली देखिए, आज आप लोगों को ऑलमोस्ट लगता है 3 घंटा से ज़्यादा मीटिंग हो गया, तो आपने अभी बताया कि कोई रेजोल्यूशन नहीं निकला, क्या रास्ता आप लोग खोल के रखा है कि दोबारा तीसरा बार फिर भी बात करना, ना आप लोग कुछ नया डिस्कशन करके कुछ अपना तरफ से कोई कार्रवाई करेगा? We have no plan to talk with the government. If government invites, we will come there. तो अरुणाचल का जनता में देखिए, अरुणाचल में सब धर्म का लोग रहता है, आप लोग खुद भी बोलते हैं और हम लोग भी अलग अलग धर्म से बिलोंग्स करते हैं, तो क्या मैसेज आप लोग देना चाहते हैं कि आप लोग आज डिस्कशन किया, एग्जैक्टली क्या डिसीजन क्या है आप लोगों आम जनता को और अलग जाति अलग धर्म का लोगों को क्या मैसेज देंगे आप? देखिए, ये जो हमने यहाँ पे कुछ रेजुलेशन लेने के लिए यहाँ नहीं आया है, हमें क्यों बुलाया गृह मंत्री, आदरणीय गृह मंत्री हमें क्यों बुलाया, हम उनको मिलने के लिए, उनका बात को सुनने के लिए हम आया है। और हम ये अरुणाचल का जितना भी हमारे भाई बहन काई भी अन्य धर्म से, और खासकर जो हमारे ईसाई धर्म से, हम ये कहना चाहूँगा कि हम आपस में मिल के रहना चाहिए, और इस जो कानून का नाम को, अफरा का नाम को लेकर हम आपस में विवाद होना नहीं चाहिए। हम आपस में एक दूसरे को हम जो जैसा जहाँ तहाँ बोल के एक दूसरा से हम निंदा नहीं करना चाहिए, एक दूसरा से हम ट्रोल नहीं करना चाहिए, एक दूसरा से हम ये है वो है, हमारा धर्म अच्छा है किसका धर्म खराब है, हम सबको ये बोलना नहीं चाहिए। हम एक ही अरुणाचल है, हम एक है, हम अलग बेस हो सकता है, अलग भाषा हो सकता है, अलग धर्म हो सकता है, लेकिन हम एक ही अरुणाचली है। इसलिए हम लोग एक साथ मिलकर रहेंगे। अगर ये बिल, ये कानून इस राज्य में आता है तो हमारा भाईचारा बरकरार रखने हमें मुश्किल बढ़ सकते हैं, ये हम देखने को मिलते हैं। बाकी इनसे पूछिए। ठीक है, हो जाएगा। मोटा मोटी आज का मीटिंग क्या सक्सेसफुल नहीं बोल, थोड़ा सा समझ सकता है क्या? बोलने दो। दोबारा बोलिए। नहीं, आज का मीटिंग का सक्सेसफुल नहीं है बोल के हम लोग क्या समझ सकता है क्या? अब आज पहला बार मीटिंग है, मीटिंग राउंड ऑफ नंबर ऑफ मीटिंग होनी चाहिए। इसका बाद ये क्योंकि 46 इयर्स का स्ट्रगल है, 1 घंटा में ख़त्म करने वाला ये नहीं होता है, तो इसको हम आज सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल तार में नहीं दिया जाएगा। गवर्नमेंट का तरफ से अपना हाथ आगे बढ़ाया है, हम थैंक्सफुल है,
लेकिन नतीजा अभी नहीं आया है और नतीजा आने के लिए उन्होंने एक प्रस्ताव रहा है कि रिपील को छोड़ के अमेंडमेंट की ओर आगे बढ़े। हमने बोल दिया कि हम नॉट लेस देन रिपील, हम इसमें फीडबैक भी नहीं देंगे, हम प्रोसेस ऑफ कंसल्टेशन में हम नहीं आएंगे। ये हमारा क्लियर कट स्टैंड रहा और उन्होंने अंत में यही रिक्वेस्ट किया कि और दोबारा आते हैं और सेकेंड राउंड करते हैं। हमने बोल दिया कि आज का माइन्यूट को आप रिटन में दीजिए, इसका बाद हम कॉल करेंगे और हम डिस्कस करके आपको ज़रूरी पड़े हम आएंगे और अदरवाइज विल थ्रो लेटर विल कम बैक करेंगे। सर कल स्टेट टू डे में सीएम ने कहा कि वी ऑल आर इंडिजिनस, जैसे अरुणाचल के हर कोई इंडिजिनस है और ये जो कानून बन रहा है इंडिजिनस के वेलफेयर के लिए बन रहा है, चाहे किसी भी रिलीजन को आप मान लें, लेकिन सभी इंडिजिनस हैं। आप क्या कहेंगे? सीएम साहब का आवाज़ से तो सबको इंडिजिनस बोल रहा है, लेकिन ये एक्ट जो है वो क्रिश्चियन को इंडिजिनस माना नहीं गया है, इसलिए वी आर एग्रीव्ड, इसलिए हम बोल रहे हैं। तो उनका वो लॉ कुछ है सर का और अलग कुछ है कि लॉ डजंट से दिस कि क्रिश्चियन आर ऑल्सो इंडिजिनियस, वो लॉ में सेग्रीगेटेड है। आप लोग एक स्टैंड रहेगा, ये रिपील होना है, ये रिपील होना है, स्टैंड रहेगा। स्टैंड है और रिपील होना है वन डे और अदर डे। जिस गवर्नमेंट इस एक्ट को रिपील कराएगा उसका नाम गोल्डन लेटर में क्रिश्चियन हिस्ट्री में लिखा जाएगा। अच्छा, और आप हम लोग देखिए जेम्स साहब, आप ठीक है, बहुत अच्छा बात किया, लेकिन आप लोगों का जो बीच में डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो चल रहा है उसका क्या होगा? ये कंटिन्यू रहेगा, दिस विल गो ऑन, दिस विल गो ऑन। Next. 6 तारीख का जो प्रोग्राम है इट विल स्टैंड, क्योंकि ये हमारा कम्युनिटी का डिसाइडेड फर्स्ट पेज ऑफ हमारा डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, ये अभी एंड नहीं सीएम हुआ। तो कल बोल रहा था ये जो किसी धर्म का एगेंस्ट में नहीं है बोल के, ये एक जो बोल रहा था उसका आप क्या कहना है? यही तो मैं अभी थोड़ा पहले बताया है, किसी धर्म का अगेंस्ट में नहीं है बोल रहा है, लेकिन उस एक्ट में तो धर्म का लीस्ट रखा हुआ ना, इस लीस्ट में क्रिश्चियन का कहाँ है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, एक्ट में क्रिश्चियन का प्रोटेक्शन नहीं दे रहा है और सर ने बोलता है कि ये किसी धर्म का अगेंस्ट नहीं बोलते, ये गलत है। थैंक यू। अरुणाचल क्रिश्चियन फॉर्म का काफ़ी सोशल मीडिया में भी काफ़ी चल रहा है और अपना यहाँ में उन सब को अरुणाचल क्रिश्चियन फॉर्म को जब इंडिजिनस अपना जो इफ्सप का सिल्वर जुबली में माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ में बताया कि अपना जो ये 1978 को जो एक्ट पास किया गया है, दोस डेज पीके तंगुन वाज द चीफ मिनिस्टर, उस समय में एक एक्ट पास किया गया है कि जो अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट को सुप्रीम कोर्ट, किसी ने कोर्ट में केस दिया कि वो एक्ट को क्यों अभी तक उसका रूल नहीं बन रहा है, एक को रूल अभी तक सरकार क्यों नहीं बना रहा है। इसलिए वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें आदेश किया कि वो रूल बनने से पहले अपना सिल्वर जुबली में भी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोर्ट का जो ऑर्डर है, माननीय ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको रूल बनना चाहिए, क्योंकि कोर्ट नहीं तो सरकार कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा अगर ये रूल नहीं बनाते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने रूल बनने से पहले मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश दिया कि जितने भी अपना अरुणाचल क्रिश्चियन फॉर्म का चेयरमैन सेक्रेटरी पूरे टीम और अपना रिलीजन में जैसे कि बुद्धिस्ट है, जैसे इंडिजिनस है और जितने भी हिंदू, जितना जो रिलीजन लीडर को लेके कंसल्टेशन करके वो रूल बनाना है। तो इसलिए आज पहले बार इतना साल 40 साल के बाद किसी ने भी, कोई भी सरकार ने अपना एसीएफ के साथ में ऐसा बैठक में डिस्कस नहीं हुआ कि अपने सरकार ने, टीम अरुणाचल के सरकार ने, हम सब पहले बार अपना जो ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर केंटू जिनी साहब, हम लोग और अपना यहाँ का ऑनरेबल एमएलए, अपना जो मेरा ही सलाहकार पानी तारम साहब, यहाँ का ऑनरेबल एमएलए तिची कसो साहब, हमारा सेक्रेटरी डायरेक्टर, हम सब एसीएफ टीम के साथ आज चर्चा हुआ, मीटिंग हुआ और उन लोगों से, उन लोग का एक ही वही रिक्वेस्ट था कि ये थोड़ा एक्ट जो है वो सही नहीं है, इसको थोड़ा
रिफ़िल करने से अच्छा है। तो हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि ये रिफ़िल नहीं करके जब रूल बनेगा तो आप लोग का तरफ से कुछ फीडबैक दीजिए कि किस प्रकार से, ताकि वो सभी समुदाय के लिए अच्छा हो और सभी रिलीजन को अच्छा हो, सबका, किसी रिलीजन के लिए यहाँ में दिक्कत नहीं होने का, ऐसा एक हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया। और उन लोगों ने एक टाइम मांगा कि कुछ दिन के बाद लिखित में देंगे और हम लोग उसको अपना टीम के साथ चर्चा करेंगे। चर्चा करने के बाद में सरकार को बताएंगे और हम लोग का तरफ से जो सलाह है वो हम लोग ज़रूर सरकार को हम लोग सबमिट करेंगे और हम लोग से डिपार्टमेंट से और बातें करेंगे बोल के एक एश्योरेंस करके गया है। इसलिए मैं आप लोग के चैनल के माध्यम से सभी प्रदेश का जितने भी जनता है सभी से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि ये सरकार, पेमा खांडू जी की सरकार, ये वेलफेयर सरकार है और ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, टीम अरुणाचल की सरकार है, सभी समुदाय का सरकार है और सभी को लेकर चलने वाला सरकार है और सबका बात सुनने वाला सरकार है। और ये हम लोग सभी का सजेशन को लेके सभी समुदाय का, सभी स्टेक होल्डर का, सभी रिलीजन लीडर का वो उसको कंसल्टेशन करके ही हम लोग रूल को बनाएंगे। और रूल बनाते समय भी सभी को आज का जैसा मीटिंग करके हम सबको बिठा के रूल को दिखा के किसी को दिक्कत ना हो ऐसे बना के हम लोग नोटिफिकेशन बाद में देने से भी देंगे। तो इस टाइप का हम लोगों ने आज चर्चा किया। एसीएफ ने एश्योरेंस दिया है कि हम लोग कुछ दिन के बाद वापस सरकार को लिख के देंगे और उसके बाद में और दोबारा उन लोग आएगा, डिस्कस करके आएगा, उसके लिए फिर हम लोग रोकेंगे और किस प्रकार का सुझाव आता है फिर उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसलिए मैं सभी लोगों को मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि ये समस्या को समाधान करने के लिए हम एसीएफ का साथ पहले बार इतने सरकार आया गया, इतने सीएम आया गया, लेकिन पहला सीएम है, पहला सरकार है जो इस प्रकार का बैठक में डिस्कशन हम लोगों ने शुरू की है। और इसको कोई सेक्शन ऑफ द कोई दूसरा लोग इसको कुछ इंटरप्रेटेड उसको पॉलिटिकली कुछ बेमतलब का वो सोशल मीडिया में जो चल रहा है वो ऐसा मत करिए। और हम लोग अच्छा से ये समस्या को हम लोग बैठक के साथ इसी प्रकार आज का जैसे बैठ के हम लोग समाधान करेंगे। और हम लोग को एसीएफ का साथ और सरकार का साथ बीच में बेमतलब का आप सबसे भी मैं विनती करना चाहता हूँ कि आप लोग ट्रोलिंग मत कीजिए। अगर आपसे कुछ है, आपको कुछ लगता है तो आप हमको सुझाव दीजिए। पीपीटी का जरिए हम लोगों ने एक्ट को अच्छा से बता दिया उन लोग को और उनका जितने भी एसीएफ टीम का हाथ में जो एक्ट है 1978 का एक्ट को हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन भी कर दिया और वो उसका सुझाव को हम लोग आने वाला हफ्ता भर में हम लोग को साइड देंगे और उसी पे फिर हम लोग बैठक करेंगे। सर, एशियन से क्या एश्योरेंस है ऑनगोइंग, स्पेशली जो हंगर स्ट्राइक चल रहा है, क्या इन्होंने हंगर स्ट्राइक को डिसकंटिन्यू कर रहा है या आपका गवर्नमेंट का में क्या एश्योरेंस दिया? एसीएफ ने ये एश्योरेंस दिया कि हम लोग उनका जो अपना टीम है, एसीएफ का जो टीम है उनसे चर्चा करेंगे। चर्चा करने के बाद में न्योकम के बाद में उन कुछ लिखित में हम लोगों को सबमिट करेंगे और दोबारा बैठक करने के लिए वो एश्योरेंस देकर गया है। और लिखित में देगा बोलकर उन्होंने अरुणाचल फॉर्म का साथ वो क्रिश्चियन फॉर्म का साथ डिस्कस करने के बाद फिर एक बार लिखित में देगा या उन लोग सरकार से और बातें करेंगे, ये एश्योरेंस दिया। मिनिस्टर लॉ से है सर, आप लॉ बैकग्राउंड से है, आप एडवोकेट प्रैक्टिसिंग एडवोकेट भी था। ये एक्ट का सबसे कंटेंशियस एक सेक्शन है जिसमें रोल ऑफ मजिस्ट्रेट का जो आता है। आई थिंक इट वाज वन ऑफ द रीजन दैट देयर इज एन एप्रीहेंशन अमंग द क्रिश्चियन कम्युनिटी कि ये लो अगर इन टोटो इम्प्लीमेंट होता है तो कोर्शन बहुत ज़्यादा होगा, जिसमें लो एक्सपर्ट कैन बी इंटरप्रेटेड इन मेनी वेज। तो इसको ये सेक्शन को लेके यू बीइंग अ लॉ मिनिस्टर आगे जाके फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल रिलीजियस प्रैक्टिशनर है, कैसा करके इसको वो कर सकता है, आप कन्विंस कर सकता है कि क्रिश्चियन फोरम को नहीं ये इतना कोर्शिप नहीं होगा, वन साइडेड नहीं होगा, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा? No, you see, I have not come across any magistrate in the act. एक्ट में 1978 का एक्ट में मजिस्ट्रेट का बात में कभी जिक्र नहीं किया है।
आप कौन सा एक्ट का बात कर रहे हैं? यू माइट बी टॉकिंग अबाउट द रूल्स, ड्राफ्ट रूल्स का। तो इसमें सेक्शन 5 में आप यू मे बी टॉकिंग अबाउट द सेक्शन 5 ऑफ दिस एक्ट, जिसमें ये इंटीमेशंस ऑफ कन्वर्शंस टू द डिप्टी कमिश्नर का बात किया है। इसमें डिप्टी कमिश्नर का बात किया है, लेकिन और ड्राफ्ट रूल्स में आप मजिस्ट्रेट का बात आने से आ सकता है। अभी मेरा ओपिनियन में यहाँ में आपको देख, आई एम टेलिंग यू, यहाँ में एक्ट में किसी को भी प्रोहिबिट नहीं किया है कि, और किसी रिलीजन और किसी सेक्ट को हम लोग टारगेट यहाँ में नहीं किया है कि 1978 एक्ट में। ये जस्ट एज ए कॉमन एक एक्ट है जिसको सब में लागू हो सकता है, और ये नो वेयर इट हैज़ प्रोहिबिट्स कन्वर्जन ऑफ रिलीजन टू अनदर रिलीजन। कई जगह ऐसे नहीं है कि कन्वर्ट नहीं कर सकता है बोल के, ऐसे कहीं नहीं लिखा है यहाँ पे एक्ट में। तो इसमें सर मंत्री साहब ठीक आप बोल रहे हैं, तो यहाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कहाँ नजर आ रहा है आप लोगों को? कंटेंशन क्या है अपोज करने का ये बिल का? आप सिर्फ कोर्ट का ऑर्डर को लेकर के जा रहे हैं ना, कुछ इसमें कंटेंशन भी है जो अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम उस दिन से भी कर रहा है और अभी भी प्रोटेस्ट कर रहा है, और अभी तो बोला है कि दे विल गो फॉर द डेमोक्रेटिक मूवमेंट, दे हैव ऑलरेडी डिसाइडेड। यू सी देयर कंटेंशन से ये लोग का आज जो हम लोग ACF से बात किया है, ये लोग का दे हैव ए कंटेंशन एंड डिपोनेशंस ऑफ द एक्ट, जिसमें सेक्शन 2 में डिफाइन किया है कि कन्वर्जन, इंडिजिनियस फेथ एंड H में बोला है रिलीजियस फेथ को लेके दे हैव ए कंटेंशन दैट वो हैव एश्योर्ड देम टू लुक इनटू। हम बात करेंगे तो उसी में। सर होम मिनिस्टर सर, अभी हमने जाना, उन्होंने कहा कि वो एडमेंट है ये एक्ट को रिपील करना है और कोई स्टैंड को वो नहीं मानेंगे, और 6 तारीख को असेंबली के बाहर जो प्रोटेस्ट करेंगे उन्होंने ये कहा है। उनका एक ही स्टैंड है कि एक क्रिश्चियन के इंडिजिनस जैसे ही बोल रहे हैं, सिर्फ इस एक्ट में क्रिश्चियन कम्युनिटी को ही टारगेट किया जा रहा है। ये आप क्या? नहीं ऐसे नहीं, हमने उन लोगों को अच्छा से हम लोग डिस्कस किया है कि ये एक्ट किसी रिलीजन का ऊपर में कोई टारगेट नहीं है, ना वो क्रिश्चियन का ऊपर में है, ना वो बुद्धिस्ट का ऊपर में है, ना वो हिंदू का ऊपर में है, ना वो दोनी पोलो का ऊपर में है। ये एक्ट सभी के लिए है। तो उन लोग को हमने वही रिक्वेस्ट किया कि ये तो अगर आपको सुझाव है, अगर इसमें कुछ सुझाव है, एजिटेशन करके तो कोई सोल्यूशन तो नहीं है, हंगारा स्ट्राइक करके सोल्यूशन नहीं है। मैंने रिक्वेस्ट किया, इसमें सोल्यूशन नहीं बनेगा। सोल्यूशन तो बैठक में डिस्कस होकर आपस में बैठ के आज का जैसा तब सोल्यूशन निकलेगा। हाँ, और किसी ने ऐसा वायरल कर दिया कि ये एक्ट का अंदर में हमारा बच्चा का बच्चा रिलीजन एडॉप्ट नहीं कर सकता है, हम प्रे प्रीचिंग नहीं कर सकता है, ऐसे करके वो लोगों को, माने कोई लोग बेमतलब का, गांव वालों को भी ऐसे बेमतलब का बताता है। ऐसे कुछ नहीं है। इसलिए एक्ट को हमने पूरा डिटेल आज बताया, डिटेल उसको पूरा PPT में दिखाया, हमारे सेक्रेटरी साहब ने डिटेल बताया, और उसके बारे में अपना कानून मंत्री हम दोनों ने डिटेल बताया। देखो इसमें किसी का नुकसान नहीं है। मैं अभी भी आप लोग का चैनल का माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि अपना ACF कोई भी रिलीजन लीडर सभी को, खास करके ACF को एजिटेशन में मत जाइए, आपस में और दोबारा जैसे एश्योरेंस किया आइए। हम दरवाज़ा खोला है 24/7, सरकार आपको बात करने के लिए तैयार है, और आपका सुझाव को भी हमने बोला कि सुझाव भी दीजिए, उसको भी हम लोग चर्चा करके जो अच्छा है उसको हम लोग रूल्स में डालेंगे। ये हमने रिक्वेस्ट किया। तो अभी भी मैं दोबारा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एजिटेशन, हंगर स्ट्राइक मत कीजिए। ये पीस स्टेट है, इतना शांतिपूर्ण से हम लोग अपना प्रदेश में चल रहा है, और इसी को हम लोग मेंटेन करने से अच्छा है। आपस में जो भी समस्या हम लोग बैठ के बात करें। बीजेपी रूल स्टेट 2 साल से मणिपुर में जो कंडीशन हुई, आज अरुणाचल में भी ऐसी डिवाइजिंग इस एक्ट को लेके आने से अगर ऐसी मणिपुर जैसी सिचुएशन हो सकती है अरुणाचल में, जैसे लोग कह रहे हैं कि एक इंडिजिनस डोनी पोलो रिलीजन प्लस यहाँ पे क्रिश्चियनिटी भी काफी ज्यादा है, सब धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, तो इस एक्ट को, पुराने एक्ट को लाके उसको करने से आप नहीं करेंगे कि मणिपुर जैसी सिचुएशन 2 भागों में बढ़ जाएगा वो? क्या 2 भागों में सब अपने लोगों कैसे बांटेगा? हम लोग तो कभी नहीं बांटेंगे। सरकार कोई रिलीजन को 2 भाग 3 भाग, तो सरकार बांटने वाला का सरकार नहीं है। अभी बोल के किया है कि हम लोग 2 भागों में बढ़ जाएगा। हम लोग कभी बांटो, कौन बोलता है हम लोग 2 भाग में बांट जाओ? ये सरकार आज तक हमने इतने साल
पेमा जी के नेतृत्व में जो इतना साल, अभी 10 साल होने जा रहा है, आपने कभी देखा है? हम सबको लेके चलने वाला सरकार है, सबका साथ, सबका विचार को लेके। इसलिए मेरा वही रिक्वेस्ट है कि कोई भी इस एक्ट को लेके डिवीजन करने का, एक रिलीजन डिवीजन करने का मत सोचिए। आपको समस्या है तो बात करिए, हम तैयार है, हम जरूर आपकी बात सुनेंगे। जो लोगों का समाज का हित के लिए, अच्छा के लिए, उसको भी रूल में डालेंगे। हम कभी नहीं बोला वो, इस प्रकार का मेरा अनुरोध है कि ऐसा सोच नहीं रखना चाहिए। आपका सरकार है, अपने गवर्नमेंट है, हम सुनने के लिए तैयार है, बात करने के लिए तैयार है। आपका अच्छा काम को हम रूल्स में डालने के लिए तैयार है। अगर वो इसमें एक्ट में भी कहीं अगर गंडोगोल है तो उसको भी हम चर्चा करने के लिए तैयार है। अब आज भी वही चर्चा किया। सर एक बात यहाँ में, अगर ये किसी का अगेंस्ट, किसी धर्म का अगेंस्ट में नहीं, किसी का अगेंस्ट में नहीं है, इसको स्क्रैप करने में या रीबिल्ड करने में भी क्या जाता है? ऐसे सरकार सोच सकता है क्या? आप लोग सब मिलके इसको विधायक में विधान, देखिए, इसके लिए कंसल्टेशन कर रहा हूँ। आज पहले बार 40 साल के बाद ये सरकार अपने टीम अरुणाचल के सरकार पहले बार ये कंसल्टेशन किया है। आप लोग बताइए, इतना साल में किसी गवर्नमेंट ने बुला के बात किया है? अभी तो एक बैठक शुरू हुआ है, वो उनके सारा चीज़ को हम सुनने के बाद, हर रिलीजन का सुनने के बाद, स्टेक होल्डर का सुनने के बाद, तो सरकार जो निर्णय लेंगे। काफी जगह ये कहना है कि बीजेपी आरएसएस की तरफ से प्रेशर है आप लोग की, बीजेपी सरकार को ये एक्ट को लाना है, आप क्या कहेंगे? काफी जगह ये बातें चल रही है कि बीजेपी आरएसएस की तरफ से प्रेशर है। चर्चा तो देखिए राहुल जी, बाहर में दुनिया भर का चर्चा, वो ऐसे बेमतलब का, ऐसे चर्चा में तो लोगों को बेमतलब का, आज भी हम आमने सामने बात हुआ, पूरा रियल को उनको दिखाया, एड को दिखाया, उनमें अच्छा से कागज़ भी उनका हाथ में दिया है। लोगों ने कभी देखा नहीं है, वो कागज़ पढ़ा नहीं है, वो तो उल्टा पुल्टा लोगों को घुमा के वो फालतू में लोगों को गुमराह कर रहा है। ये ऐसे होने जा रहा है, ये बीजेपी गवर्नमेंट ऐसे होने जा रहा है, ये ऐसा होने जा रहा है। ऐसा तो कुछ नहीं है। और हम लोग को ऐसा नहीं है कोई, मैं तो अभी तक कहीं से प्रेशर है, कहीं से ऐसा तो कुछ नहीं है। सर एक मेरा आपसे एक ही सवाल है सर, आप यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से बता रहे हैं कि रेजोल्यूशन निकल गया, आने वाले से फिर से मीटिंग रखेंगे। फिर एसीएफ की टीम जब यहाँ से निकले तो उनकी तरफ से फिर अलग से कहें वो रेडी नहीं है गवर्नमेंट से मिले, अगर बुलाएगा तब मिलेगा। उनकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि हम आएंगे और मिलेंगे। तो आई गेस जितने भी जनता देखेंगे आपका स्टेटमेंट एज अ कंसर्न मिनिस्टर एंड देन एसीएफ के रिप्रेजेंटेटिव्स कंफ्यूज हो जाएगा, जो जितने जनता देखेंगे। तो एज अ मिनिस्टर आपकी तरफ से क्या कहना होगा, स्पेशली अरुणाचल के लोगों को? नहीं, अरुणाचल के लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से जो लोगों ने गांव वालों को खास करके गांव वालों को ये एक्ट को लागू होने से, अब सुबह हमारे पास भी कुछ लोग आए थे, हमारा ही कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग, बोला हम लोग को आप लोग तो ऐसे रूल लगाने जा रहे हैं, हम लोग का एसटी काट जाएगा, हम लोग का वो काट जाएगा, हम लोग को गवर्नमेंट का तरफ से पूरा प्रीचिंग करने में पाबंदी होगा। हम बोला किसने बताया? ऐसा कहीं संविधान में कहीं लिखा नहीं है। आप कन्वर्जन आप कर सकता है, कहीं रुकावट नहीं है। हाँ, वो कोई भी धर्म को आप कन्वर्जन कर सकता है, एडॉप्ट कर सकता है। ये कानून में कहीं नहीं लिखा है कि आपको वो रिलीजन से दूसरा रिलीजन में कन्वर्ट मत करो, कहीं नहीं लिखा है। ये इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में, ये हमारा लॉ मंत्री यहाँ में है, आर्टिकल 25 में क्लियर लिखा हुआ है कि इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। तो लोगों को ऐसा, इस प्रकार का लोगों को मिस इंटरप्रेट करके माइंड में, खास करके गांव वालों को मैं यही कहना चाहूँगा कि ये कानून में कोई एसटी काटने के लिए कुछ नहीं है। ये कानून में आपको जो रिलीजन में आप उसको नहीं मानने के लिए कहीं लिखा हुआ नहीं है। ये कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं है। ये कानून एक ही कोई रिलीजन के लिए नहीं, ये कानून जो है, एक्ट जो है, वो पूरा जितना अरुणाचल के जितने भी रिलीजन है सभी के लिए है। ये कोई पार्टिकुलर के लिए नहीं है। तो आप लोगों ने बताया कि एसीएफ ने अभी बोला, एसीएफ तो अभी हम लोग चारों विधायक या हमारे मंत्री साहब हमारे दोनों विधायक भी सुन के गया, या चेयरमैन ने बोल के गया कि हम कुछ दिन में अपना क्रिश्चियन फॉर्म के साथ मीटिंग करने के बाद में लिखित में हो चाहे और दो बार हम लोग चिंतन मंथन करके हम लोग बात करेंगे, ये बोल के गया है। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।